Hello guys, welcome back to Entrance Yoga. This is Tahira Zufasha and today I'll be starting with Law of Contract का second वाला part and in this video I'll be dealing with types of contract on the basis of their validity or enforceability, and other than that I'll be dealing with communication of proposal and acceptance कब complete होता है, जब parties in person होती हैं, and तब कब complete होता है जब parties in person नहीं होती हैं, and कुछ PYQs भी discuss करेंगे. So yeah, let's start. There are situations when agreements, just hold on for a while. Yeah, there are situations when agreements turn into contracts at their inception, but at later stage, due to change in any of the essential conditions of the contract, a contract ceases to be enforceable under the law and thus becomes void. तो हमने बेसिक क्या समझा अभी कि void contract तब होगा जब when it ceases to be enforceable, मतलब contract was valid at the inception, ठीक है, मतलब at a point of entering into contract was valid, but later on due to some change in the essential conditions of contract, like condition have to be free, object and consideration has to be lawful, etc जो हमने section 10 में पढ़ा था, वो conditions change होने की वजह से contract ceases to be enforceable and that contract becomes void. Also, when the consent obtained for the agreement is not free, consent obtained for the agreement is not free, it is voidable. जब agreement में consent लेते हैं और जिस पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं होता है उस पार्टी की ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट voidable होता है, मतलब ही कैन डिस्चार्ज from the liability of discharge from the liability of performance of contract by going into competent court of court of law. वहां पे जाने के बाद जो competent court होती है वो contract को void declare कर देती है. So on the basis of validity we have these few contracts like valid contract valid कब होगा जब उसके सारे essential conditions क्या हैं fulfill हो रहे हैं as per section 10, ठीक है. void contract हमने भी क्या पढ़ा, void contract तब होता है जब due to some change in the essential condition of a contract, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको अच्छे से. voidable contract तब होता है जब there could be various scenarios, one of the scenario is consent free नहीं है. कंसेंट फ्री नहीं है तो जिस पार्टी कंसेंट फ्री नहीं था, जिसको अंडर कोशन, अंडर इन्फ्लुएंस और मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू उसका कंसेंट लिया गया है, उस पर्टिकुलर पार्टी जो एग्रीव पार्टी है उसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है. इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जिसके लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल नहीं हो या फिर ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं हो. अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वैसा कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं. Let's move ahead and I'll be dealing with some other kinds of agreements as well. So when I mentioned किया agreement क्योंकि वो contract बन ही नहीं पाया, like they are wagering agreement, contingent and we're dealing with contingent contract as well. Void contract. First is void contract, a contract which ceases to be enforceable by law, becomes void when it ceases to be enforceable. वैसा contract जो इन्फोर्सिबल नहीं कराया जा सकता है, अब वो क्या हो जाता है, void contract. ये वैलिड था इनिशियल स्टेज पे बट लेटर इट कल्मिनेट्स इनटू अ void contract. Any contract when turns void cannot thereafter become valid. एक contract void होने के बाद वापस में valid नहीं हो सकता है, but voidable contract valid हो सकता है. There could be various scenarios as well, but that is not important for you guys. A contract becomes void when it is unable to fulfill the condition mentioned in section 10. तुम्हें सिर्फ इतना जानना जरूरी है अभी के हिसाब से कि what are the scenarios जहाँ पे contract void होता है and what are the scenarios जहाँ पे contract voidable होता है. So contract void तब होता है जब इसके essential condition section 10 के essential condition fulfill नहीं होते तो contract void हो जाता है, जैसे हमने पढ़ा अभी. Thus, when parties are incompetent to form contract, like minors मैंने बताया ना, person has to be major in order to form contract. Minors can't enter into contract. हमने केस में पढ़ा था मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, माइनर का बहुत लैंडमार्क केस है.
पार्टीज जब इनकॉम्पिटेंट होती हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन के लिए, लाइक दे आर माइनर और इफ दे आर पीपल ऑफ अनसाउंड माइंड, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, ठीक है। फर्दर इम्पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस ऑल्सो मेक्स कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, अगर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ही नहीं कर सकते हैं, देयर इज अ इम्पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, A agrees to pay B a sum of rupees 10k after 5 years against a loan of rupees 8k. A dies of natural cause in 4 years. The contract is no longer valid and becomes void due to non-enforceability of the agreed terms. देखो यहाँ पे हुआ क्या, A और B एक kind of contract में आते हैं जहाँ पे A agreed to pay rupees 10,000 after 5 years because he took loan of 8,000, ठीक है। but A died in fourth year, ठीक है। So the contract is no longer valid, क्यों, क्योंकि यहाँ पे impossibility of performance हो गया, जिस person के साथ contract में B इंटर किया था वो person ही नहीं है, he died, तो यहाँ पे this particular contract will become or will culminate into void contract. Make sense? All right. Yeah, so next one is voidable contract. Voidable contract are those contract which are in which the consent of one party is not free because it might have been taken under coercion, undue influence, fraud, or misrepresentation. It remains enforceable till it is not declared void by the competent court. See, the person by whose consent was not free may go to competent court to get discharged from the liability of the performance of the contract, and that competent court may declare that contract now void. What does that mean कि कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड था तब तक जब तक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको void डिक्लेयर नहीं किया. This example, person A agrees to pay sum of rupees 1,000 to a person B for an antique chair. Here B's consent was taken under undue influence, so the contract is voidable adoption of B. यहाँ पे क्या हो रहा है कि A और B के बीच में एग्रीमेंट हुआ, A ने कहा B को I'll pay you 1,000 rupees for an antique chair, एंड यहाँ पे नेक्स्ट लाइन क्या मेंशन है कि बी का कंसेंट जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंडर लिया गया है. सो हियर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी, मतलब because B's consent was not free, so he may go to competent court and may ask for the discharge from the liability of the performance of the contract. So वो competent court इस particular contract को क्या declare कर देगी, void declare कर देगी. Okay. Now next is contingent contract. A contract to do or not to do something depending upon the happening and non-happening of the future uncertain events. See, ये contingent contract क्या होता है? Contingent contract are those contract जहाँ पे कुछ करने या कुछ नहीं करना depend करता है कि future में जो uncertain event है वो होगा या नहीं होगा उस पे. A contingent contract is enforceable under law. ठीक है, ये enforceable होता है. इसका example देखते हैं पहले. A promises to buy the Indian cricket team's jersey if they win the match today. Now this is a contingency as there is no guarantee whether India will win the match. See यहाँ पे मैंने क्या कहा? A contract to do or not to do something. तो इस केस में क्या हो रहा है? There's a person has promised to do something because he has promised to buy Indian cricket team's jersey, right? What's the and on what particular incident is what particular future event it is dependent upon. तो future event क्या है? Future event is if the Indian team will win the match, then only A यहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी लेगा. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो पर्सन है ए promises to do something depending upon the happening and non happening of a future uncertain event. Uncertain है ना ये, क्योंकि there is no guarantee as such that India will surely win the match. There might have been probability but there is no certainty as such, right? So that's why it is an uncertain event and उसकी happening non happening पे मेरी contract की performance depend करता है. That is what contingent contract is and it is enforceable under the law. It's very important.
The next is wagering agreement. The parties have opposite views regarding the uncertain event and equal chances of gain or loss. There is no other interest of parties in the agreement except for winning or losing it. See, party, they are parties and they both have a different view. They have both have a opposite view regarding in some uncertain event. ठीक है, उसकी कोई अनसर्टेन इवेंट है, उसके हैपनिंग नॉट हैपनिंग या क्या रिजल्ट होगा, उसको लेके दो पार्टी का अलग अलग व्यूज है, ठीक है। एंड दोनों का ही इक्वल चांस है गेन या लूज करने का या विन या लूज करने का, और दोनों ही पार्टीज का उसके अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं है उस एग्रीमेंट में एक्सेप्ट फॉर विनिंग और लूजिंग इट। वेजिंग एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल अंडर द लॉ। सेक्शन 30 ऑफ द एक्ट declares it to be void. Section 30 of Indian Contract Act declare करता है wagering agreement को void agreement. The uncertain future event decides who wins the wager. जब वो uncertain future event जब होगा, then a person, then that particular happening will be able to happening से हम decide करेंगे ये पर्टिकुलर वेजिंग एग्रीमेंट में कौन जीत रहा है। इट्स अ बेट, ठीक है, इसलिए रेसिप्रोकल प्रोमिसेस पे बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल, एक्स इंटर इनटू अ वेजर विद वाई इफ एक्स फॉर टेक अप स्टार्टअप gains at least 50,000 customers in 6 months, then y shall pay x a certain monetary sum, and if it doesn't hit a target, then x shall pay y the same amount. तो यहाँ पे x और y एक वेजिंग एग्रीमेंट में आते हैं। x एक फूड स्टार्टअप स्टार्ट करता है, एंड और वो वाई कहता है कि अगर तुम्हारे कस्टमर्स है वो 50,000 कस्टमर्स हो जाएंगे 6 मंथ्स में, तो मैं तुम्हें कुछ मॉनेटरी सम, कुछ पैसे दूंगा तुम्हें, ठीक है। और अगर अगर नहीं हुआ तो एक्स पैसे देगा वाई को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फ्यूचर इवेंट पे दोनों दोनों अपने उनका विनिंग और लूजिंग डिपेंड कर रहा है कि कौन किसको पैसे देगा। सो इट्स अ बेट। एंड जो वेजिंग एग्रीमेंट्स होते हैं वो सिंपली तो समझ लो, वेजिंग एग्रीमेंट्स क्या होता है, बेट होता है। और जो वेजिंग एग्रीमेंट्स होते हैं वो नॉट एनफोर्सेबल अंडर लॉ होते हैं, एज पर सेक्शन 30 ऑफ द एक्ट दे आर डिक्लेयर्ड टू बी void. That's it. Moving ahead, there's illegal and unlawful agreements. If either the consideration or the object is an action or omission prohibited by law, it results into illegal contract. अगर या तो कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन या कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट वो ऐसा कोई एक्ट या ऐसा कोई ओमिशन है जो लॉ प्रोहिबिट करता है, then it will be a illegal contract. The agreement entered into for any unlawful or illegal object or concession cannot be enforced under law and are thus void under section 24 of the Indian Contract Act. इलीगल और अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन क्या होता है, नॉट लॉफुल होता है, ठीक है, दे आर प्रोहिबिटेड बाय लॉ. However, there is possibility that the object or consideration with which the contract was formed initially later turns into unlawful और इलीगल इन विच इट बिकम्स void. देखो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट इनिशियली लॉफुल था वो लेटर ऑन टर्न्स टू बी अनलॉफुल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, एंड तब वहां बाद में जाके वो void हो जाएगा। और अगर इनिशियल स्टेज पे ही ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन void है, देन इनिशियल स्टेज से वो कॉन्ट्रैक्ट void कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। Now let's see examples. First example is A enters into agreement with B to share the profit by giving false assurance to public to get them a job in Singapore. A और B एक agreement में enter करते हैं जहाँ पे वो promise करते हैं कि they will share the profit। अगर वो क्या रहे हैं, वो they are giving false assurance to public कि उन्हें जॉब दिलाएंगे सिंगापुर में, ठीक है, एंड उससे जितनी भी प्रॉफिट आएगी वो आपस में शेयर करेंगे। तो बताओ यहाँ पे क्या ये पर्टिकुलर जो एक्ट है इनका, जो ऑब्जेक्ट है इनका एग्रीमेंट का, क्या वो लॉफुल है? देन आंसर इज नो, बिकॉज इट इज चीटिंग, इट्स अ फ्रॉडलेंट एक्ट, सो द एग्रीमेंट इज अनलॉफुल एंड हेंस इट इज void as per section 24 of the act. See, in this example what happens is कि A और B एक एग्रीमेंट में एंटर करते हैं और यहाँ पे A को एक कोई B अपनी माइनर डॉटर देगा एज एन मैरिज, एंड अगर वो नहीं देता है देन ही हैज टू पे सम अमाउंट एज अ पेनल्टी, एंड बिकॉज minors are prohibited, right? There's a marriageable age, and so this violates the general laws of or secular laws of the our country.
So this is also opposed to public policy and thus are not enforceable because these are already prohibited by law. Next is communication of proposal acceptance. Communication of proposal. According to Section 4 of Indian Contract Act, the communication of proposal is complete when it comes to knowledge of that person to whom that proposal was made. Section 4 of Indian Contract Act कहता है कि proposal communication तब complete होता है जब जिसको ये proposal दिया गया है उस person के knowledge में वो बात आ जाए. Proposal communication complete हो गया, comes to the knowledge of that person to whom that proposal was made. There's illustration. A sent a letter to B on Monday via post. See क्या होता है, A लेटर भेजता है B को मंडे को लेटर भेजता है A B को via post. Proposal letter reached B's place on Wednesday. B को पहुंचता है वो लेटर, hold on, yeah, B को पहुंचता है वो लेटर on Wednesday. ठीक है. इन दिस केस कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट कब होता है? वेंसडे को होता है, मंडे को नहीं. क्योंकि हमने क्या देखा, कम्युनिकेशन प्रपोजल तब कंप्लीट होता है एज पर सेक्शन 4 व्हेन इट comes to the knowledge of that person to whom that proposal was made. जिसको प्रपोजल दिया गया है उस प्रपोजल के उस पर्सन के नॉलेज में तो वो बात आ जाए. जब उस पर्सन के नॉलेज में वो बात आ जाती है तब प्रपोजल कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है. यहाँ पे ए ने बी को लेटर भेजा था मंडे को, लेकिन प्रपोजल कंप्लीट कब हुआ? वेंसडे को. क्योंकि वेंसडे को बी ने रिसीव किया वो लेटर, तब बी को पता चला ये प्रपोजल के बारे में, तब उसे इस बात की नॉलेज हुई, राइट. नाउ कमिंग टू द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, वो कब कंप्लीट होता है? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर when it is put in the course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor. As against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer. See, यहाँ पे acceptance या communication तब complete होता है proposer के against जब वो को क्या करता है, एक्सेप्टर क्या करता है, कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में वो लेटर या फिर वो बात जो कहना चाहता है वो डाल देता है. जब वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन चला गया मतलब कि एक्सेप्टर जो वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहा है उसके पास ये पार या कंट्रोल नहीं है कि वो अपना आंसर चेंज कर सके. अब क्योंकि उसने कोर्स ऑफ फॉर एग्जांपल लेटर है तो उसने कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया, उसने पोस्ट कर दिया, तो क्या वो एक्सेप्टर के हाथ में है कि वो आंसर चेंज कर सकता है? आंसर इज नो. सो प्रपोजर के अगेंस्ट जैसे ही एक्सेप्टर ने वो लेटर डाल दिया कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया. कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट एक्सेप्टर कब कंप्लीट होता है? जब प्रपोजर को बात पता चल जाती है, जब प्रपोजर को उसकी जो वो या तो वो कंसेंट या तो वो एसेंट देता है या नहीं देता है, वो जब प्रपोजर को पता चल जाता है, जब उसको नॉलेज मिल जाती है उस बात की, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में एक्सेप्टर के अगेंस्ट कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है. ओके, लेट्स सी एन इलस्ट्रेशन. ए प्रपोजेस बाय letter to sell a house to B at a certain price. ओके, ए बी को कहता है कि आई विल सेल अ हाउस एट अ सर्टेन प्राइस एंड वो लेटर से उसको प्रपोजल भेजता है. बी एक्सेप्ट्स ए's प्रपोजल बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट. ठीक है, बी एक्सेप्ट भी करता है प्रपोजल. ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, और वो भी लेटर भेज देता है मतलब एक्सेप्ट करके. ठीक है, अपना जो प्रपोजल था उसका एक्सेप्ट करके उसका लेटर भेज देता है. तो communication of acceptance is complete as against A when the letter is posted, as against B when the letter is accepted received by A. So यहाँ पे A के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा कम्युनिकेशन? तब जब लेटर क्या हो गया है, पोस्ट हो गया है. ठीक है, बी के अगेंस्ट तब कंप्लीट होगा कब? जब ए लेटर रिसीव कर लिया है. ऐसे मैंने बताया था प्रपोजर के अगेंस्ट तब कंप्लीट हो जाता है जब एक्सेप्टर ने कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन लेटर डाल दिया हो, मतलब लेटर पोस्ट हो गया हो. और एक्सेप्टर के अगेंस्ट तब कंप्लीट होता है जब प्रपोजर को उस बारे में नॉलेज हो जाती है. मतलब यहाँ पे बी कौन है, एक्सेप्टर है, तो बी के अगेंस्ट तब कंप्लीट होगा जब लेटर रिसीव कर लेगा ए. ओके, नाउ वी विल सी कॉन्ट्रैक्ट इंटर एब्सेंटिस क्या होता है. Those contract in which contracting parties are not in presence of each other at the time of making the contract or a time of entering into contract, that particular contract are known as contract inter absentis. Hold on. Yeah.
सो जब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज जिनके बीच में एग्रीमेंट इंटर हो रहा है, जिसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट इंटर हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कहलाएंगी। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एक दूसरे के प्रेजेंस में नहीं है, मतलब इन पर्सन नहीं है, तो उस वक्त जब कॉन्ट्रैक्ट इंटर होता है उस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट इन इंटर एब्सेंटिस, मतलब पार्टीज आर नॉट इन प्रेजेंस। सी, the contracting parties use different types of methods of communication to communicate their offer and acceptance in case of contract inter absentis, like postage, telegram, telegraph, telephone, email, etc. See, जब parties in person नहीं है तो definitely they will use some other method to communicate their offer and acceptance. So what could be that? That could be a letter, that could be telegram, that could be telephonic conversation हो सकता है, या फिर electronic mail हो सकता है, etc etc. सो द हम लोग कॉन्ट्रैक्ट इंटर एब्सेंटिस क्यों पढ़ रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट इंटर एब्सेंटिस इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज दिस एग्जाम इज कंसर्न, क्योंकि हमें यहाँ पे देखना होता है, क्वेश्चन हमेशा आता है कि जब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज इन पर्सन में नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कब होता है? व्हेन डज द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स कंप्लीटेड? ओके, सो पोस्टेज के सिनेरियो में, जहाँ पे पोस्टेज होता है, जहाँ पे लेटर भेजते हैं, पार्टी लेटर भेजती है, तो जब ऑफरी puts his acceptance in the course of transmission. देखो, ऑफरी कौन होता है? ऑफरी इज दैट पर्सन दैट इज एक्सेप्टिंग द ऑफर। जो ऑफरी अपना एक्सेप्टेंस कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल देगा, सो एज द कंट्रोल इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ ऑफरी, ठीक है। अब वो अपना एक्सेप्टेंस चेंज नहीं कर सकता, अपना आंसर चेंज नहीं कर सकता, तो जब वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल देता है तब कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे कंटिन्यू हो जाता है। सो फॉर एग्जांपल, इट्स अ वेरी लैंडमार्क केस कह सकते हैं। एग्जांपल देखो, बहुत इन पे क्वेश्चन भी आता है कि ए और बी इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड ए बी ने अपना एक्सेप्टेंस डाल दिया कोर्स ट्रांसमिशन में, बट ए को कभी रिसीव ही नहीं हुआ। तो सो द क्वेश्चन इज, क्या कभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ? सो आंसर इज यस, कॉन्ट्रैक्ट तभी कंप्लीट हो गया था जब बी ने अपने लेटर को कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाल दिया था, पोस्टेज पे डाल दिया था, नो मैटर ए लेटर रिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि वो चला गया। अब देखो, वो सिनेरियो जो हमारे हैंड्स में नहीं होते, वो हम कंट्रोल नहीं करते हैं, तो इसीलिए एज पर द लॉ द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कंप्लीटेड at the point when the offeree puts his acceptance in the course of transmission. टेलीफोन पे कब होता है? जब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहा है तब पार्टीज का जब पार्टीज टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे, तब कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट होता है? प्लेस वेयर द ऑफरी स्पीक्स टू द ऑफरर हिज एक्सेप्टेंस टू द ऑफर, उस प्लेस पे जहाँ पे ऑफरी, देखो फॉर एग्जाम्पल, ऑफरी इज इन एक्स प्लेस और ऑफरर इज इन वाई प्लेस, तो एक्स प्लेस पे जब वो अपना एक्सेप्टेंस बोल रहा है उसको कि हाँ आई एम एक्सेप्टिंग दिस पर्टिकुलर ऑफर, हाँ आई विल बाय दिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो जब वो एक्सेप्टेंस दिखा रहा है, अपना एसेंट दिखा रहा है, जिस प्लेस पे दिखा रहा है उस प्लेस पे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा ना एक्स और वाई प्लेस, तो एक्स प्लेस पे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा बिकॉज एक्स प्लेस पे ऑफर डिसाइड करता है। Yeah, so now let's discuss some PYQs of Jamia. Specifically, I'll focus the latest one, like 23, 22 wale questions. Just few questions. Uh, First question says assertion. A void contract is not necessarily illegal. कह रहे हैं void contract जरूरी नहीं है illegal हो। हाँ, it's correct, क्योंकि जरूर void contract void क्यों होता है? Maybe because की कोई essential conditions है mentioned in section 10 वो fulfill नहीं हो रहा है, the consideration was not was not lawful, object could not be lawful, then वो illegal होगा। But what if consent was not free, ठीक है, and some other conditions of section 10 अगर वो fulfill नहीं हो रहा, still the contract is void, right? जरूरी नहीं है कि हमेशा void contract illegally होना जरूरी है, but reason says every illegal contract is void, which means कि that's true, that's again true. Why? Every illegal contract is void, सारे illegal contract void होते हैं, क्यों? Obviously हमने पढ़ा था ना कि if there is a consideration and object is not lawful, then the contract will be void,
राइट. सो यहाँ पे ये भी सही, रीजन भी सही है, तो हम ये कह सकते हैं. बट कैन वी से कि ए अवॉइड कॉन्टैक्ट नॉट नेसेसरी इलीगल? क्या ये रीजन एक्सप्लेन करता है? नहीं. तो बोथ आर द डिफरेंट स्टेटमेंट्स विच आर स्पेसिफिकली विच आर इंडिविजुअली ट्रू, बट no, but sorry, R is not the correct explanation of A. So the option B is correct. Hold on. Yeah, which says both A and R are individually true, but R is not a correct explanation of A. I hope ये समझ आया. क्यों? क्योंकि देखो, a contract could be void because of various reasons or because of lack of fulfillment of the essential conditions as laid down in section 10. नॉट नेसेसरली कि वो इलीगली हो, ठीक है, लेकिन अगर इलीगल है तो वॉइड तो होगा ही, दैट्स फॉर श्योर. सो बोथ आर इंडिविजुअली ट्रू, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ओके, मूविंग अहेड. Next question. Principle says the communication of proposal is complete when it comes to the knowledge of person to whom it is made. Proposal का communication कब complete होता है? तब complete होता है जब जिसको बताया गया है, जिसको offer दिया गया है, उसके knowledge में ये बात आ जाए. मैंने पढ़ाया था. Facts. A sent a letter making a proposal to B to purchase his bike. A ने एक letter भेजा B को as a proposal, इसमें proposal डालता है वो to purchase his bike. तो communication of proposal from A to B तब complete होगा जब B वो letter पढ़ेगा. Okay. B के लेटर पढ़ेगा तभी तो उसके नॉलेज में वो बात आएगी, राइट, क्योंकि वो दैट पर्टिकुलर लेटर कंटेन्स द प्रपोजल, राइट. तो ए और बी के कम्युनिकेशन ऑन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन या अन पर्सन तो हो नहीं रही है, बाय लेटर हो रही है. तो लेटर जब वो पढ़ेगा तभी तो उसके नॉलेज में बात आएगी, तभी तो कम्युनिकेशन प्रपोजल कंप्लीट होगा एज पर अ प्रिंसिपल. Okay, the correct option would be option A. The communication proposal is complete when B reads the letter. Okay, moving ahead. And a principle says an agreement with a boy below the age of 18 years is not enforceable by law. Principle कह रहा है कि अगर कोई लड़का है उसका एज 18 ईयर से कम है, वो पर्टिकुलर एग्रीमेंट क्या है? नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है, ठीक है. फैक्ट क्या कह रहा है? अ मैन इंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद अ गर्ल ऑफ 17 इयर्स ऑफ एज. अब फैक्ट में क्या है? फैक्ट में लड़की की बात नहीं हो रही है, फैक्ट में लड़की की बात हो रही है. तो लड़की के कंटेक्स्ट में हमें कोई प्रिंसिपल मिला ही नहीं है, ठीक है. तो इस पर्टिकुलर में क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? नो इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन. अब आई नो यू मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग कि माइनर्स के साथ एग्रीमेंट और इन्फोर्सेबल होता है, तो गर्ल रहे या बॉय रहे, व्हाई डज जेंडर मैटर? Gender matters because यहाँ पे specifically this particular principle is talking about boy only. Okay. तो प्रिंसिपल जो कहता है, हम प्रिंसिपल एज इट इज फैक्ट्स में लगाते हैं, ठीक है, ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाते. जहाँ प्रिंसिपल जो कह रहा है वही लगाते हैं. प्रिंसिपल हमेशा एक लॉ ही होता है, ठीक है, स्टेटेड लॉ होता है, तो उस लॉ को एज इट इज फैक्ट्स में लगाया जाता है. But यहाँ पे the principle is talking about boy and is not talking about a girl. So in order to solve this particular fact जहाँ पे girl की बात हो रही है, we need to know the provisions of regarding girl, ठीक है. Although we know, but यहाँ पे principle में mention नहीं है, तो we do not know anything, ठीक है. Okay, so the correct option would be no inference can be drawn because principle and facts are both are just does not relate with each other. Okay. Moving ahead, A, who is in Mumbai, makes an offer for supply of goods to B, who is in Delhi, via mobile phone call. During the same call, A's offer is absolutely and unconditionally accepted by B. According to the terms agreed between A and B, goods are to be supplied at Pune and payment is to be made electronically in the given situation where is the contract concluded. See, ए जो मुंबई में है वो एक ऑफर करता है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स टू बी जो दिल्ली में है, ठीक है. अब वाया मोबाइल फोन कॉल बात हो रही है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट इंटरैप्ट सेंटेंस होगा ये, ठीक है. यहाँ पे क्या है? उस सेम कॉल में ही ए का जो ऑफर है वो बी ने एब्सोल्युटली और अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है. अब कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के अकॉर्डिंग गुड्स सप्लाई होने हैं पुणे में और पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली होगा. अब देखो, दिस पर्टिकुलर लाइन इज नॉट रिलेवेंट क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्ट जो हमने देखा था ना, कॉन्ट्रैक्ट इंटरैप्ट सेंटेंस में क्या हमने पढ़ा था? टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में कहाँ पे कंप्लीट होता है, किस प्लेस पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होता है? लेट्स सी अगेन, रुको, जस्ट होल्ड ऑन. या
टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में प्लेस वेयर द ऑफरी स्पीक्स टू द ऑफरर हिज एक्सेप्टेंस टू द ऑफर, जहाँ पे ऑफरी ऑफरर को अपना एक्सेप्टेंस बताता है, जहाँ पे एक्सेप्टेंस के बारे में बताता है उसको कि हाँ आई एम एक्सेप्टिंग दिस पर्टिकुलर ऑफर, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होता है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड, लेट्स सी अगेन अवर क्वेश्चन. ओके, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि ए मुंबई में है, ठीक है, एंड ऑफर दे रहा है बी को जो दिल्ली में है, और बी ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ कंप्लीट होगा, दिल्ली में होगा ऑब्वियसली. वो उस प्लेस पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होता है जहाँ पे जो ऑफरी है वो ऑफर का एक्सेप्टेंस ऑफर का प्रपोजल एक्सेप्ट करता है. सो दिल्ली वुड बी द प्लेस जहाँ कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो रहा है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये आता ही आता है हर साल. प्लेस कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है इन केस ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन. That's it for today. In next class, we'll starting with criminal law. Uh, Please like, share and subscribe our channel. I hope आप लोगों को समझ आया होगा मैंने जो पढ़ाया. It's a rapid revision, so yeah, I'm skipping some topics, but I'm trying my best कि वो topics at least you'll be able to know, especially those who are starting just now, कि उनको थोड़ा आइडिया हो जाए. ऑल्दो लीगल इज दैट सब्जेक्ट जहाँ पे तुम्हें अगर नॉलेज नहीं भी है ज़्यादा लॉ की, यू आर स्टिल गिवन अ प्रिंसिपल, तो उस प्रिंसिपल की बेसिस पे यू हैव टू सॉल्व द फैक्ट. तुम्हारा अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ इंग्लिश समझ आती है तो विल बी एबल टू सॉल्व. बट फिर भी देयर आर सम क्वेश्चंस जहाँ पे यू विल नीड सम नॉलेज ऑलरेडी थोड़ा तुम्हें सब्जेक्ट का थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होना ज़रूरी होता है, इसीलिए वी रीड सम सब्जेक्ट्स. थोड़े लीगल मैगजीन्स वगैरह तो खुद से करने पड़ेंगे, वो तो याद ही करना है, वो तो मगअप करना है, उसमें कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास. लैंडमार्क केसेस में मगअप करना है, उसमें भी कोई ऑप्शन नहीं है. बाकी ये प्रिंसिपल फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस आई होप ये हो जाएंगे अगर तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है और आप मैंने जितना पढ़ाया है उतना पढ़ रहे हो, तो दैट्स इट. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो आराम से हो जाएगा इंशाल्लाह. All the best for your exams. Inshallah, we'll meet in the next class. That's it for today. Bye bye.